Welcome in Unacademy Life 7. In biology class, today I will discuss about RNA, ribonucleic acid, structure of RNA, type of RNA and their function. आज जेनेटिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के बारे में, जिसमें कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द स्ट्रक्चर ऑफ RNA. RNA is made up of three organic compound. RNA is made up of three organic compound: ribose sugar, phosphoric acid, bases. Bases are classified into two groups: purine base and pyrimidine base. In purine base, two bases are grouped: adenine and guanine. And in pyrimidine, uracil and cytosine. The main difference from DNA, in case of DNA, pyrimidine base is thymine, but in case of RNA, pyrimidine base is uracil. That is the main difference. The second difference, DNA is double stranded structure, but RNA mostly single stranded structure. Now, ribose sugar, purine base, adenine, guanine, pyrimidine base, uracil, cytosine. Now, what is the arrangement of these bases? These bases forms nucleoside and nucleotide. As in case of DNA, when base combines with sugar, pentose sugar, that forms nucleoside. Nucleoside is of four types. In case of RNA, nucleoside is known as riboside. Nucleoside or riboside. First, adenine riboside. Second, uridine riboside. Third, cytosine riboside. And fourth, guanine riboside. It means nucleoside is base plus sugar. अब इस न्यूक्लियोसाइड से फिर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ nucleotide is also known as ribotide.
nucleoside plus H3PO4, that is nucleotide or ribotide, that is nucleotide or ribotide. It is also of four types: A, sugar, and P. Adenine ribotide, uracil ribotide, cytosine ribotide, guanine राइबोटाइड। तो इस प्रकार से पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा, बाद में H3PO4 उससे ज्वाइन करके ऐड हो करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। अब नाउ स्ट्रक्चर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, you can say RNA is polyribotide structure। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप देखें। यह है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मैंने बताया कि आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बट इन रियो वायरस केस आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। नाउ टाइप ऑफ आरएनए, RNA is of four types. First of all, you will classify RNA into first messenger RNA, second functional RNA. In functional RNA, there are three types of RNA: transfer RNA, ribosomal RNA, and small nuclear RNA. ये तीन प्रकार के आरएनए फंक्शनल आरएनए में होता है। इस तरह से टोटल चार प्रकार के आरएनए हुए: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। शॉर्ट में आप इसको एमआरएनए कहते हैं, इसको टीआरएनए कहते हैं, इसको आरआरएनए कहते हैं, इसको एसएन आरएनए कहा जाता है। अब हम एक एक करके लेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए दैट वाज प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड। सबसे पहले जेकब और मोनार्ड ने इसको बताया और उन्होंने ये बताया कि इट पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ये डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन इसका होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। ATCG लिया मैंने, लेकिन प्रेजेंस ऑफ थायमिन दैट इज नॉट आरएनए। हियर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। यहां ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ थायमिन बाय यूरेसिल। Now, this structure is RNA and replacement of thymine by uracil with the help of RNA polymerase, that is known as transcription.
ये एक टेम्पलेट के रूप में आता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है कि किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होना है, किस प्रकार की प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। टोटल आरएनए का ये 3 to 5% होता है, माने मैसेंजर आरएनए इज 3 to 5% of total RNA, that is simply messenger of information given by DNA. What type of protein is to be synthesized? किस प्रकार की प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, ये मैसेंजर आरएनए हुआ। सेकेंड है ट्रांसफर आरएनए, दैट इज प्रपोज्ड pronounced by Mahlon and Hogland. Mahlon and Hogland. Transfer RNA is soluble in 1 molar solution of NaCl. Soluble in 1 molar solution of NaCl, so it is also known as transfer, that is specific for अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एक विशिष्ट अमीनो एसिड का अपने के साथ, उस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये अटैच करता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट आरएनए है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 74 से लेकर के 95 तक होती है। इतने ही न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर दिया है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है और एक ये है। सबसे ऊपर का जो है एक्सेप्टर आर्म है और यहां पर ACCR CCA न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म्स कोडॉन, और इस समय कोडॉन जो है ट्रिपलेट कोडॉन यही फॉर्म करता है। अपर आर्म में जो कोडॉन है ACC, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री लोअर आर्म में होता है, क्योंकि यह अटैच होगा मैसेंजर आरएनए से और यह अटैच करेगा एमिनो एसिड को। सेकंड है ये लूप DHU आर्म। DHU आर्म मीन्स डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म, ये ऑप्शनल आर्म है। और TC आर्म है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, दैट इज आल्सो नोन एज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो नोन एज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अब हम एक एक आर्म के बारे में बताएंगे। यहां पर फर्स्ट एक्सेप्टर आर्म, मैंने बताया कि सबसे ऊपर का आर्म जो है एक्सेप्टर आर्म है, जहां पर हमारा सीक्वेंस जो है CCA का है, साइटोसिन एडेनिन का है, which occurs at the terminal portion of the transfer RNA, which occurs at the terminal portion of the transfer RNA. It is the point of attachment, ये जो CCA है, it is the point of attachment of amino acid, means acceptor arm that attaches amino acid. Now second, DHU arm, dihydrouridine arm, is stem loop structure containing dihydrouridine as unusual pyridine nucleotide. ये unusual pyridine nucleotide है। Now next, TC arm, it contains sequence of TC where Psi stands for the modified nucleotide that is known as pseudouridine, that is known as pseudouridine. ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन SH किम ने इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिया और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल भी होता है,
लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में। नाउ फंक्शन, ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये विशिष्ट अमीनो एसिड को ये बाइंड करता है और यह जो बाइंडिंग होती है वो उसके न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड जैसे UUU दैट बाइंड्स ओनली फिनाइल एलेनिन। ट्रांसफर आरएनए आल्सो acts as adapter RNA, so it is also known as adapter RNA. It has one codon and one anticodon, or anticodon that is the complementary of codon. जैसे A है उसका कॉम्प्लीमेंट्री U है, C है उसका कॉम्प्लीमेंट्री G है, G है उसका कॉम्प्लीमेंट्री C है। तो ट्रांसफर आरएनए is specific for अमीनो एसिड। जिस प्रकार का मैसेंजर आरएनए आता है, जैसे मान लीजिए UUU CCA AUG, इस प्रकार का आया। मान लें आप यह जो है अमीनो एसिड A1, अमीनो एसिड A2, अमीनो एसिड A3 को ले रहा है, तो इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और यह पेप्टाइड बॉन्ड अब इससे एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड बनेगी। मान लीजिए यह आपका चेंज हो जाता है CCA UUU AUG, तो अब CCA का यह है तो अमीनो एसिड A। अमीनो एसिड इन दिस केस अमीनो एसिड A2 comes first, after that A1, after that, तो arrangement of amino acid that forms other type of protein. Now ribosomal RNA, this term was proposed by Kurland. It is major component of ribosome. It is synthesized in nucleolus by transcription with RNA polymerase. The function of ribosomal RNA to provide the space for messenger RNA over ribosome during translocation process. And the fourth type is small nuclear RNA, that is denoted by SN RNA. It is found in only eukaryotes. Some small nuclear RNA guide the modification of ribosomal RNA. Guide the modification of ribosomal RNA, other unit, other protein subunit to form a ribonucleoprotein processing complex called स्प्लियोसोम। ये स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है एंड दैट रिमूव्स इंट्रॉन फ्रॉम यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के लेक्चर में राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के बारे में बताया, इसके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया और ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बताया मैंने, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इनके फंक्शन बताया। आज के लेक्चर में आई हैव कंप्लीटेड टोटल आरएनए, दैट्स ऑल।